वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे चरनां विच जुड़मल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही अमृतमय बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। साडे इस संसार विच लोग चाहते ने कि कुछ ना कुछ ऐसी वस्तु हासिल हो जाए जिहदे नाल जीवन जिउना सौखा हो जाए। कोई खजाना मिल जाए, कोई लॉटरी लग जाए, कोई हीरा मिल जाए, जां कोई किसी तरह की जादू की छड़ी लभ जाए, कोई मणी लभ जाए जिहदे नाल जीवन विच सुख हो जाए, जिहदे नाल जीवन विचों दुख दरिद्रता गरीबी मिट जाए, सुख प्राप्त होवे। हर बंदे दे मन अंदर ऐसी कोई ना कोई चाहत जरूर है। हर कोई इस तरह की इच्छा रखता है कि कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ना कुछ ऐसा प्राप्त हो जाए। इस करके लोग हर वेले इस गल का ख्याल रखते हैं कि की पता राह विचों कदों कित्थों की लभ जाना। सतगुरु समझाते, सतगुरु कहते जे कोई खजाना कदे मिल भी जाए, जे कोई किसी तरह का कोई बहुत कीमती लखां करोड़ां का हीरा मिल भी जाए, कोई दौलत भी मिल जाए, जो भी बंदे की इच्छा है जे वो पूरी भी हो जाए, हर वो चीज़ मिल जाए जिहदी बंदा चाहत रखदा है, पर फिर भी उस वस्तु नाल साडे जीवन विच सुख आवेगा, असीं सुखी होवांगे, इस गल की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि इहो जिहा खजाना ये झूठा है, ये सुख नहीं दिंदा। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज अज दे इस पावन बचन अंदर सोझी दिंदे ने। सतगुरु कहंदे जिन्हां नूं गुरु मिल पिया उन्हां नूं सच्चा खजाना लभ पिया। ऐसा खजाना, ऐसी दौलत जिहड़ी कदे मुकदी नहीं, ऐसा आनंद जिहड़ा कदे नहीं खत्म होंदा, ऐसा खजाना। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज आखदे ने, सतगुर ते हर पाईए भाई। हे भाई, सतगुरु तो ये दात प्राप्त होंदी है। असल खजाना वो वाहिगुरु है, वो परमेश्वर, ते वो खजाना गुरु राही प्राप्त होंदा, किसी होर तरह वो हासिल ही नहीं होंदा। गुरु उस खजाने तक पहुँचण का नक्शा है, मैप है गुरु उस खजाने तक पहुँचण का, गुरु परमात्मा तक पहुँचण का मार्ग है। इसलिए
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਐ ਭਾਈ, ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ ਬਾਹਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ, ਕਦੀ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ, ਕਦੀ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਨਿਧਾਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 60-65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਨਿਧਾਨ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਮਨੂਰ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਨਿਧਾਨ ਵਰਗਾ, ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ੈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਜੇਬ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਜੇਬਾਂ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਰੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਕਸਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
इस करके उन्हां कोल वो शै है जिहड़ी संसारी लोकां कोल नहीं है। नाम निधान, नाम दा खजाना। राजियां महाराजियां कोल दुनियावी धन तां बहुत है, उन्हां कोल दुनियावी खजाना तां बहुत है, पर वाहिगुरू दे नाम दा कोई खजाना नहीं उन्हां कोल, उहदी बंदगी दा कोई खजाना नहीं। इस करके सतगुरु कहंदे ये गुरु ने मैनू विखा दिता, ये गुरु ने मैनू बख्शिया नाम निधान। गुरु ने सोझी दिती कि अंदर घर है, अंदर सब वत है, बाहर किछ नाही। गुरु अमरदास महाराज कहंदे गुरु ने मैनू ये सोझी दिती कि घर विच ही सब वस्तुआं ने, घर विच ही सब वस्तु है, घर है अंदर सब वत है, बाहर किछ नाही, बाहर कुछ भी नहीं, बाहर कुछ भी नहीं। असीं बाहर देखते हैं कि शायद बाहरों कुछ मिलेगा। साडी दिक्कत यह है कि साडियां अखां बाहर ही देखदियां, साडे कन बाहर दी गल ही सुनते हैं, साडे हत्थ पैर बाहर नूं ही जांदे ने, साडी चमड़ी सानूं बाहर दे बारे दसदी है, साडी जुबान बाहरलियां चीज़ां दा स्वाद लैंदी है, पर अंदर दा सानूं कुछ पता नहीं। तुसीं जरा जानो इस गल नूं। बाहर किसी चीज़ विच कोई रस नहीं है, रस साडे अंदर ही है, आनंद साडे अंदर ही है। सतगुरु कहंदे सब वत कित्थे है? घर है अंदर, घर अंदर ही है सब वत, बाहर नहीं। असीं जदों किते बीमार हो जांदे हां, बीमार हो जांदे हां तां साडे मूँह दा स्वाद बदल जांदा है, मूँह दा स्वाद बदल गया। सानू घर विच बनी हुई दाल सब्जी उहदा कोई टेस्ट नहीं आउंदा, स्वाद नहीं आउंदा। बाकी घर दे सारे जी उस दाल सब्जी नूं बड़े स्वाद नाल खांदे ने, पर हुण सानू उहदा कोई स्वाद ही नहीं, बेसवादी लगदी है, बेसवादी। पर जिवें ही असीं ठीक हुंदे आ, तंदुरुस्त हो जांदे आ, तदों सानू फिर स्वाद आउण लग जांदा है, फिर सानू उही चीज़ चंगी लगन लग जांदी है, क्योंकि साडे अंदर ही है सब कुछ, बाहर चीज़ां विच कुछ भी नहीं है, बाहर चीज़ां विच कुछ नहीं। इस करके सतगुरु समझाउंदे घरै अंदर सब वत है, बाहर किछ नाही, बाहरलियां वस्तुआं विच कुछ नहीं है, सब कुछ अपने घर विच ही है। गुर प्रसादी पाईए अंतर कपट खुलाही। गुरु की किरपा दे नाल प्राप्त हुंदा है अंदर दा आनंद, गुरु की किरपा नाल प्राप्त हुंदा है अंदर दा टिकार। गुर प्रसादी पाई है, गुरु की किरपा नाल पाईदा, ते जदों गुरु किरपा करदा है तां अंतर कपट खुलाही, तां साडे अंदर जिहड़े कपट है, जो अंदर कपट है ना, छल कपट, ये फिर मिटदा है। साडे अंदर दे मन दे कवाड़ फिर खुलदे ने गुरु की किरपा नाल। जो कपट चलाकी है ये फिर मिटदी। सतगुरु कहते गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाए, कपट खुल जाता है, कपाट साडे मन दे कपाट, क्योंकि मन बड़ा चलाक है, मन बड़ा पखंडी है। गुरु इस मन दे पखंड नूं खत्म करदा है, गुरु इहदा पखंड उघाड़दा है, गुरु इहदे अंदरों विषयां नूं विकारां नूं कढदा है, गुरु सच प्रगट कर दिंदा है। इस करके सतगुरु कहंदे गुरु किरपा करके कपट नूं खत्म करदा है ते उहदी रहमत नाल सानू अपने घर अंदर ही वो प्राप्त हो जाता है। सतगुर ते हर पाईए भाई, गुरु तो भाई वो परमात्मा प्राप्त हुंदा है। अंतर नाम निधान है,
ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਕਾ ਗਾਹਕ ਹੋਵੇ ਸੋ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸਾ ਤੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਓ ਤੇ ਮਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਵੇ। ਐਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹੋ ਜੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜੀ ਹੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਗਾਹਕ ਹੋਵੇ ਸੋ ਲਏ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵਾਸਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵਸ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਾ ਗਾਹਕ ਹੋਵੇ ਸੋ ਲਏ, ਪਾਏ ਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਤਨ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਵ ਦਿਸ਼ਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਤਦੋਂ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਵ ਦਿਸ਼ਟ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖਿੜਾਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੈ ਦਿਵ ਦਿਸ਼ਟ, ਦੇਖੈ ਮੁਕਤ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਹਿਲ। ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 10-20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
कि मेरे कोल इन्नियां गड्डियां हुंदियां सी, मेरे कोल फलाना फलाना मेरा मकान हुंदा सी, फलाने फलाने मेरे प्लाट हुंदे सन, सब विक गया। वो बस ਉਹੀ सोची ਜਾਂਦਾ कि मैं कदे बड़ा अमीर होया करदा सी। वो उत्थे ही बैठा होया, ਉਹਦੀ सुरती बिरती उत्थे ही लगी हुई है। बेशक कोल कुछ भी नहीं, हुण खाली है, पर मन उत्थे ही है, मन विच हाले भी ਉਹੀ कुछ भरिया। इस करके सतगुरु कहंदे मन दे अंदर वखरा ही संसार है, मन दे अंदर वखरे महल बने हुए ने। अंदर महल अनेक हैं, पर इन्हां सारे महलों दे विच किते एक महल, किते एक घर उस परमात्मा दा भी होवेगा जिथे वाहिगुरू वसदा है। वो सानू दिसदा नहीं, सानू माया दे घर दीदे रहिंदे ने। सतगुरु कहंदे अपने अंदर माया दे महल दिसदे ने, पर जिस महल विच वाहिगुरू वसदा है वो नहीं दीदा। कबीर साहब दा शब्द है, कोठे अंदर कोठड़ा परम कोठी विचार, कि इस शरीर रूपी कोठे दे अंदर होर एक कोठा है, तो उस कोठे दे अंदर एक होर छोटी जी कोठी है, उहदे विच वो परमात्मा वसदा है। उहदी सानू समझ नहीं आउंदी। सतगुरु कहंदे उस महल दा, उस कोठे दा कोई पता नहीं, पर बंदा अपने कोठे पाउण लग्या होया, अपने मन विच अपने ख्याली महल। सतगुरु कहंदे भाई अंदर महल अनेक हैं, जियो करे वसेरा, जिथे साडी जिंद वसदी है, जिथे साडी जान वसदी है, वो महल वो नहीं दिसदा सानू, वो नज़र नहीं आउंदा। मन चिंदिया फल पाए सी, फिर होए ना फेरा। जिन्हों मन चिंदिया फल प्राप्त हो गया, सतगुरु कहंदे वो दोबारा जम्मण मरण दे गेड़ विच नहीं पैंदा। फिर होए ना फेरा, दोबारा फिर बार बार जम्मण मरण दा फेरा पैंदा ही नहीं। जन्म मरण दे फेर तो सतगुरु कहंदे वो मुक्त हो जांदा है। जन्म मरण दे झमेले तो वो मुक्त हो गया। जिन्हों मन चिंदिया फल प्राप्त हो गया, जिहड़ा उस वाहिगुरू नाल जुड़ गया। इसलिए सतगुरु कहंदे जिहड़े गुरु चरनां नाल जुड़े उन्हां नूं सोझी आ गई, गुरु नाल जुड़ के सोझी आ गई। पारखियां बथ संभाल लई गुर सोझी होई। जिहड़े पारखी ने, परखण वाले, वो गुरु चरनां नाल जुड़ के उन्होंने वस्तु नूं संभाल लिया। पारखियां वथ संभाल लई, उन्होंने संभाल लई। जदों असीं गुरु दे दर बैठे हाँ, तां गुरु दे शब्द राहीं गुरु सानू कुछ गल समझा रहा है। कीर्तन राहीं, पाठ राहीं, कथा राहीं गुरु सानू कुछ समझा रहा है। जे वो गल साडी समझ विच आ गई, तां असीं उस वाहिगुरू दी नाम रूपी वस्तु नूं संभाल लवांगे परख के, कि ये चीज़ अनमोल है, इस नूं संभाल लो। तो जिन्हों असीं अनमोल समझी बैठे हाँ, उन्हें अज भड़ के छुट्ट ही जाना है। जिहड़ी माया नूं असीं समझी बैठे ना कि इहदे बिना सरना नहीं, वो होवे चाहे ना होवे, जदों असीं तुर गए इस दुनिया तो फिर उहदी कोई कीमत नहीं। इसलिए सतगुरु कहंदे जिन्हों ये गल समझ आ गई, उन्हें सच नूं परख लिया, तो उन्हें सच नूं अपने हिरदे विच सांभ लिया। पारखियां वथ संभाल लई गुर सोझी होई, नाम पदार्थ अमुल सा। उन्होंने समझ आ गई कि वाहिगुरू दा नाम रूपी पदार्थ अमुल है, उहदी कोई कीमत नहीं दे सकदा। नाम पदार्थ अमुल सा, गुरमुख पावै कोई, कोई बिरला गुरमुख प्राप्त करदा है। सब नूं नहीं प्राप्त हुंदा नाम, सब नूं नहीं, किसी विरले नूं प्राप्त हुंदा है। बाहर भाले सो क्या लहै। गुरु अमरदास महाराज कहंदे जिहड़ा बाहर लभदा फिरदा है, वो की लवेगा, की हासिल करेगा? कुछ भी नहीं, सिवाए खुआरी तो, सिवाए खज्जल होण तो होर कुछ हासिल नहीं होना। बाहर भाले सो क्या लहै, वथ घरै अंदर पाई। सतगुरु कहंदे वस्तु तो घर विच ही मौजूद है। बंदा बाहर लभदा फिरदा है, वो चीज़ घर विच मौजूद है, असीं होर पासे देखदे हां। सतगुरु कहंदे सब किछ घर मैं बाहर नाही, बाहर टोलै सो भरम भुलाही।
सब कुछ घर विच है, बाहर कुछ भी नहीं है। जिहड़ा बाहर टोलदा है वो खज्जल हुंदा है। सो भरम भुलाही गुरप्रसादी जिनी अंतर पाया, जिन्हां ने गुरु की किरपा नाल अपने अंदरों पा लिया। सतगुरु कहंदे सो अंतर बाहर सुहेला जी, वो बंदा सुखी हुंदा है। वो अंदर बाहर हर थां सुखी, क्योंकि उन्हें अपने अंदरों लभ लिया। इसलिए बाहर भाले सो क्या लहै, घर बथ घरै अंदर भाई। नाम भरमे भूला सब जग फिरै। भरम दे विच भुलिया होया सारा संसार फिरदा है। भरम विच पिया, भटकना विच पिया संसार। भरमै भूला सब जग फिरै, मनमुख पत गवाई। मनमुख ने अपनी पत गवा ली। मनमुख बंदे ने अपनी पत गवाई, उसनूं कुछ भी हासिल नहीं होया। मनमुख माया दे विचों लभदा रहा। मनमुख इस संसार विचों लभदा रहा कि सुख मिलेगा। मनमुख धीआं पुत्तां विचों लभदा रहा। अखीर फिर खाली हथ इस दुनिया तो तुर गया। अखीर खाली जाना पिया, प्राप्ति कुछ भी ना हुई। इस करके सतगुरु कहंदे भरम विच भटक के कदे किसे नूं सुख हासिल नहीं हुंदा। भरमे भूला सब जग फिरै, मनमुख पत गवाई। घर दर छोड़े अपना, पर घर झूठा जाई। सतगुरु कहंदे ये झूठा बंदा अपना घर छड्ड के दूजिਆਂ ਦੇ घर देखदा फिरदा। पर घर सतगुरु कहंदे दूसरे का घर, पराया घर तकदा। घर दर छोड़े अपना, पर घर झूठा जाई। परायां दे घर वल तकदा फिरदा। बंदे दा सुभाਅ ही ऐसा है कि इहदे अपने घर विच जो मौजूद है वो इसनूं नज़र नहीं आउंदा। अपनियां चीज़ां, अपनियां वस्तुआं हमेशा ही थोड़ियां लगदियां। इंज लगदा है कि ये तो कुछ भी नहीं है। दूसरे दी थोड़ी चीज़ भी बहुती लगदी है, अपनी बहुती चीज़ भी थोड़ी लगदी। इस करके सतगुरु कहंदे बंदे दा ध्यान दूसरिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ है। इसलिए दूसरे दे बच्चे चंगे, दूसरे दे इवें, दूसरे दा घर इवें, दूसरे दी पत्नी चंगी, सारियां चीज़ां दूसरिਆਂ ਦੀਆਂ चंगियां। सतगुरु कहंदे ऐसा बंदा सब कुछ होने के बावजूद भी वो सुखी नहीं हो पाता। इसलिए सतगुरु ने झूठा कहा ऐसे बंदे नूं कि झूठा आदमी है। घर दर छोड़े अपना, पर घर झूठा जाई। दूसरिਆਂ ਦੇ घर तकदा फिरदा झूठा आदमी। फिर ਉਹਦੀ हालत की हुंदी है, चोर है वांगू पकड़ी है। सतगुरु कहंदे वो चोर वांगू पकड़िया जांदा। जिवें चोर नूं चोरी करदिਆਂ ਨੂੰ फड़ लो ना, सतगुरु कहंदे इवें कोई बंदा तुहाडे घर ਵੱਲ ਨੂੰ तकदा, तुसीं अचानक ਉਹਦੇ ਵੱਲ देख लो तो अखां चुरा लैंदा अपणियां, वो अखां चुरा लैंदा। सतगुरु कहंदे चोर वांगू पकड़ी है, चोर वांगू पकड़िया जांदा बिन नाम है चोटां खाई। वाहिगुरू दे नाम तो बिना फिर चोटां खांदा, खज्जल हुंदा। खज्जल हुंदा, खज्जल ही होवांगे जे अपने घर नूं छड्ड के दूसरिਆਂ ਦੇ घर ਵੱਲ तकांगे। खज्जल ही होवांगे जे जो मिलिया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ राजी नहीं होवांगे। तां खज्जल ही होवांगे जे वाहिगुरू दे शुकराने नाल अपने हिरदे नूं ना भरांगे। तां इस करके सतगुरु कहंदे जिन्नी घर जाता अपना, जिन्हां ने अपना घर जानिया, जिन्हां ने अपने घर जानिया कि मेरे घर विच सब कुछ है, दूसरिਆਂ ਦੇ मुकाबले वैसा नहीं है जैसा दूसरिਆਂ कोल है, पर जैसा है मेरे मुताबिक वधिया है। सतगुरु कहंदे से सुखी है भाई, वो बंदे सुखी ने। उन्हां दे घर विच सुख है जिन्हां ने अपने घर नूं जान लिया कि चंगा। अपने घर दी रोटी भावें रुखी होवे वो स्वाद हुंदी है। दूसरे दी घर दी रोटी देसी घिओ नाल चोपड़ी बहुत चंगी लगदी होवे, पर उहदा सानूं कोई सुख नहीं है। दूसरे दा घर जिन्ना मर्जी वधिया होवे उहदा सानूं कोई लाभ नहीं होण वाला। दूसरे दे घर दे बाहर किन्नियां गड्डियां खड़ियां जां घर अंदर किन्नियां गड्डियां खड़ियां, उहदे नाल सानूं कोई सुख नहीं मिलण वाला।
दूसरे दे बच्चे वो कनेडा अमरीका सैट हो गए जां वो बहुत वड्डियां नौकरियां ते लग गए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी सानू कोई सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि ਉਹਦਾ सुख ਉਸੇ ਨੂੰ है। साडा सुख साडे अपने घर विच है। सतगुरु कहते जिन्हें अपने घर विच जान लिया, जैसा भी है जिन्हें वैसे विच ही सुखी रहना जान लिया, वो बंदा कदे दुखी नहीं हुंदा, उन्होंने हमेशा सुख हासिल हुंदा। जिन्नी घर जाता अपना से सुखीए भाई, वो बंदे सुखी होए, वो आनंद नाल भर गए। अंतर ब्रह्म पछाणिया, उन्होंने अपने अंदरों अपने हिरदे विचों ब्रह्म नूं पछाण लिया। सतगुरु कहते हिरदे घर विच ब्रह्म नूं पछाण लिया, अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई। ये गुरु दी वडियाई, ये गुरु दी बड़ी वड्डी किरपा, ये गुरु दी बड़ी वड्डी बख्शिश। अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई, आपे दान करे किस आखिए। सतगुरु कहते वो वाहिगुरु आप ही दान करदा है। सानू जड़ियां चीज़ां दातां मिलियां होईयां, ये उहने दान दिता होया सानू, असीं उहदे कोलों मंग मंग के दातां लईआं ने। इसलिए आपे दान करे किस आखिए, आपे दे बुझाई। सतगुरु कहते किहनूं आखिए, वो आप ही बुझाउंदा है, आप ही सोझी दिंदा है, वो आप ही सूझ बख्शदा है। वो मत दिंदा है तां सानू मत आउंदी है, वो सानू सोझी दिंदा है तां असीं समझ पाਉਂਦੇ ਹਾਂ कि दाता वो है, असीं नहीं हाँ। असीं तां भिखारी हाँ, दातां देण वाला दाता तां सिर्फ वो वाहिगुरू है। ਉਹਦੇ ਇਹ अजीब कौतक ने जिन्हां नूं असीं समझ नहीं पाते। नानक नाम ध्याए तू दर सच्चै सोभा पाई। सतगुरु कहते हे भाई उस परमात्मा के नाम नूं ध्या, तू हमेशा उस वाहिगुरू नूं सिमर, उहनूं सिमरन नाल दर सच्चै, उस वाहिगुरू दे सच्चे दर ते सोभा पाई, सच्ची सोभा प्राप्त होंदी है। ਉਹਦੇ नाम राही, ਉਹਦੀ बंदगी राही ही सच्ची सोभा मिलती, उस तो बिना नहीं। माया राही मिली सोभा वो 4 दिहाड़े दी है, माया दे नाल ही चली जाएगी। रुतबे अहुदे नाल किसी मंत्री पद नाल मिली हुई सोभा वो मंत्री पद दे गया ही चली जाएगी। इस करके सतगुरु कहते सच्ची सोभा उस वाहिगुरू दे नाम नाल है। तुहाडे कोल कुछ होवे जां ना होवे, सोभा बनी रहिंदी है। तुहाडे कोल पैसा होवे जां ना होवे, वो वाहिगुरू दे नाम दी सोभा उवें ही रहिंदी, वो कदे नहीं जाती। इस करके सतगुरु कहते जिन्हां ने नाम ते आया उन्हां नूं सोभा मिली, उन्हां नूं उहदे दर दी रहमत हासिल हुई। सतगुरु रहमत करे ये रब्बी रहमत उहदे नाम दी सानू सारिआं नूं हासिल होवे कि सच्ची सोभा सानू उहदे नाम द्वारा प्राप्त होवे। होईयां भुल्लां लिखेवां सतगुरु जी अते आप सर्वत संगत बख्शण योग, भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।